Good evening, sir. Good evening, ma'am. Shall I start? Wait, karo. Just give 2 minutes more and then start. 2 minutes more. Okay, sir. Yeah. You, ma'am, you got to know how to share textbook. No, sir. Actually, I didn't get the PDF also. PDF I have. If you want, I can send you. Yeah, yeah. You send it to me, sir. I'll just check later on. Yeah, fine. Okay. Okay, sir. Sir, shall I start now? Yes, ma'am. You can start. Start. Hello. Yes, ma'am. Please start. Hello. Hello. Yeah, ma'am. You can start. I said. Sir, shall I start? Hello. Ah, sir. Shall I start? Yeah. You can start. Okay, sir.
Good evening, all of you. You all can hear me? Yes, ma'am. Good evening. 1 second. You all can see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You all see the screen? Yes, Yes, ma'am. Okay. So last time what did we do? IUPAC names What of did we do last amines. time? IUPAC names. Actually, I put on my speaker. I think there is some loose connections. I cannot hear you people. 1 minute. What did we do last time? IUPAC names of amines. 1 minute. मैं speaker लगा लेती हूँ. हाँ, अभी बोलो. IUPAC names of amines. It's gone, I think. Okay. Sorry. Tell me once again, please. I have taken out my speaker. Ma'am, IUPAC names of amines. IUPAC nomenclatures. Okay, so I hope you all remember what we did last time. Okay, so with that part, let us continue. Okay, so now see here, in the last lecture, we have seen what is an amine is, right? We have defined the amines. Can anyone tell me what is an amine? Can you define it? Anyone? What are amines? A compound. Say. Derivatives of ammonia. एक मिनट हाँ तुम्हारा आवाज बहुत लो है लेट मी चेक द स्पीकर अगेन एक मिनट से Ma'am, derivatives of ammonia. यू आर सेइंग Organic Ma'am, derivatives of ammonia. हाँ A compound in which In which one, two, or three hydrogen atoms are attached. okay okay I'll say you just listen I think both of them has set together any one of you can tell it once again anyone once again Ammonia are the organic derivatives of ammonia in which one, two, or three hydrogen atoms are attached to nitrogen. Okay, so see here, I'll tell you the definition once again. Just remember it. Okay, what are amines? Actually, amines are organic, nitrogen containing organic compounds, right? This I told you last time. Amines are nitrogen containing organic compounds. Okay, they are organic compounds, but they contain, along with this carbon and hydrogen atoms, they have the nitrogens also in them. Okay. Now, what is the definition of amine? Amines, you can define it like this. They are the derivatives of ammonia. Amines are what? Amines are derivatives of ammonia. Last time I gave you this definition. They are the derivatives of ammonia. Where what do we do? Where one, two, or all the three hydrogen atoms of ammonia is replaced by which group? allyl or aryl. Yes, it is replaced by alkyl or aryl group. Okay, this alkyl group they can be same or it can be different also. Similar with this aryl. Okay, so this is the definition of amine. So I'll just repeat it once again. You should know the definition by heart. Okay. So what is the definition of amine? They are the derivatives of ammonia
where 1, 2 or all the 3 hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or an aryl group. These alkyl and aryl group can be same or it can be different. Okay, is the definition clear, all of you? Yes, ma'am. So can anyone repeat it? Can Yes. anyone say now? हाँ बोलो. Without Amines are derivatives of ammonia in which 1, 2 or all the 3 H atoms are replaced by alkyl or aryl groups, this alkyl and aryl group can be same or different. very good. ठीक है? So that is the definitions of amine. ठीक है? Now amines में आगे हमने क्या देखा था? इसका classifications देखा था, right? So amines, how are they classified? They are classified as primary, ठीक है, Secondary, tertiary. and tertiary amine. अब ये primary amine क्या होता है? What is the primary? NH2. Yes, NH2 means what? That is the way you recognize it. But definition पूछा तो क्या बोलेंगे? Where only one Two hydrogen hydrogen is atoms. replaced by Yes. alkyl or aryl group. Very good. So from ammonia, if you replace only one hydrogen atom by an R group, ठीक है? अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम्स है, उसमें से सिर्फ एक को हटाकर उस जगह तुम लोगों ने R ग्रुप डाल दिया, ठीक है? तो क्या मिलेगा? RNH2 मिलेगा, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है? इफ यू आर रिप्लेसिंग 2 हाइड्रोजन एटम, अभी 2 हाइड्रोजन एटम निकाला और 2 R ग्रुप डाल दिया, तो क्या मिलेगा? R2NH मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमाइन, ठीक है? इफ यू आर रिप्लेसिंग ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स बाय एन R ग्रुप, देन व्हाट यू विल गेट? R3N मिलेगा, ठीक है? ये R3N को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज अ टर्शियरी अमाइन, ठीक है? So primary amine will be RNH2. This is primary amine. Secondary amine will be R2NH. Tertiary amine will be R3N. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन्स कम होते जा रहा है और R ग्रुप बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो प्राइमरी से अभी ये डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग है ना ढूंढते नहीं बैठ सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी जस्ट लुक एट द ग्रुप. NH2 ग्रुप दिखा, कितना भी बल्कि ग्रुप होने दो, वहां पर NH2 दिख गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल डायरेक्टली एज प्राइमरी, ठीक है? सिर्फ NH दिखा तो हम उसको सेकेंडरी बोलते हैं, सिर्फ N दिखा तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्शरी करके बोलते हैं, ठीक है? सी व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? यू डोंट थिंक कि इसमें क्या है, क्या होने वाला है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना हमको डिस्टिंग्विश करने के लिए आना चाहिए जो अमाइन दिया है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है? क्योंकि ना ये तीनों जो अमाइंस है, सर्टेन रिएक्शंस दे डू इट इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है? सारे तीनों के तीनों एक जैसे रिएक्शंस नहीं बताएंगे. कोई रिएक्शन प्राइमरी अमाइन बताएगा तो कोई ये सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं बताएगा, तो ऐसे भी कोई कोई केसेस है. So for that purpose, you should be able to recognize what type of an amine it is. So this part is very, very important. Is this clear? ठीक है? Then what did I say? This R group. This R groups can be same or different. देखो अभी प्राइमरी में सिर्फ एक ही R ग्रुप है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट व्हेन यू कम टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी, नो, यहाँ पर 2 और 3 R ग्रुप्स हैं, तो ये R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और it can be different also, ठीक है? So now can you tell me the names if the R groups are same? Symmetrical. If the R groups are same, then they are called as what? Symmetrical. Simple. Symmetrical amines बोलते हैं या simple amines. Good, ठीक है? Simple या symmetrical amines they are called as. If the R groups are different, ठीक है? R groups different है तो क्या बोलेंगे? Mixed or unsymmetrical. Mixed or unsymmetrical. अमाइंस, ठीक है? तो ये R ग्रुप सेम भी हो सकता है, R ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है? दिस R ग्रुप कैन बी एन अराइल ग्रुप आल्सो, बेंजीन रिंग वाला भी हो सकता है, ठीक है? So these are the classifications which we did it in the last class.
और ये भी देखा था हमने N के साथ डायरेक्टली R ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, R ग्रुप है, R ग्रुप मतलब क्या, एलिफैटिक ग्रुप अटैच्ड है, तो उसको हम एलिफैटिक अमाइंस करके बोलते हैं। दिस आर कॉल्ड एज व्हाट, एलिफैटिक अमाइंस। एलिफैटिक अमाइंस कभी बोलेंगे NH2 NH या N के साथ R ग्रुप से। अभी ये R ग्रुप होता क्या है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ऐसे कोई भी ग्रुप रहेगा ना R वाला तो उसको हम एलिफैटिक बोलेंगे, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइंस किसको बोलते हैं हम, which are called as aromatic amines? Benzene ring. Benzene ring, when the nitrogen is directly attached to the benzene ring, then we call this amines as aromatic, Aromatic. ठीक है। तो अपने पास है ना दो टाइप ऑफ अमाइंस है, तो तुम लोग को है ना मैं पूरा ये चार्ट बना के बताती हूँ। हियर व्हाट यू कैन से, अमाइंस का क्लासिफिकेशन तुम लोग कैसे करेंगे, मुझे ना ये कर्सर दिखता नहीं है, एक मिनट। See here, amines, how you will classify, this can be classified as what, it can be classified as aliphatic amines and aromatic amines, बराबर, aliphatic and aromatic। अभी ये aliphatic में भी में क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस आएगा। सिमिलरली एरोमेटिक में भी क्या आएगा, इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी और टर्शरी। समझा गया? So see, I'll give you an examples. ठीक है, एक मिनट, I'll give you the examples. अभी मुझे बोलना ये कौन सा कैटेगरी पे आएगा करके, ठीक है। See, your first example is, एक मिनट, let me choose a big cursor. See here, अभी यहाँ पर है ना तुम्हारा एग्जाम्पल ये है CH3 C NH2 CH3 CH। अब मुझे बोलो ये क्या रहेगा, Aliphatic. Aliphatic primary amines. क्या आएगा, एलिफैटिक में प्राइमरी, सेकेंडरी, Primary amine. Primary. एलिफैटिक प्राइमरी, ठीक है, एलिफैटिक प्राइमरी। बस यहीं पर देखने का, डोंट लुक एट द कार्बन आइटम, कार्बन इज टर्शरी, लेकिन तुम्हारा NH2 ग्रुप है ना, तो NH2 ग्रुप को देख के डायरेक्टली एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस करके बोलने का, ठीक है। सी हम लोग है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन आइटम के लिए कार्बन को देखते हैं, बट व्हेन इट इज एन अमाइंस, नो, अमाइंस में सिर्फ ये NH ये वाला ग्रुप ही देखने का, और कुछ देखने का नहीं, ठीक है। अभी ये वाला बताना मुझे, C6H5NH2, what is this? Be careful. Aliphatic. Aromatic. Primary. It is aromatic. Aromatic. C6H5 मतलब स्ट्रेट चेन नहीं है, ठीक है। C6H5 किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग को बोलते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग। Yes, ma'am. So this is what, this is aromatic primary amine, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, Aromatic. Aromatic. Aromatic tertiary. Tertiary. aromatic tertiary amine, ठीक है। So this is how you are going to classify whether it is aromatic या aliphatic, और उसके अंदर primary, secondary, tertiary क्या है करके, ठीक है। So this is what we have seen in the last class, and after this what did we start with, we started with the nomenclatures, ठीक है। nomenclatures में क्या देखा था हमने, nomenclature पे दो टाइप देखे हैं हमने, एक है Common name and IUPAC. IUPAC nomenclature, ठीक है। in common names how do we write the names, common में names कैसे लिखते हैं, Without numbering. Alkyl followed by the amine. Alkyl amine. amines, ठीक है। इसको ऐसे याद रखने का, it is written as what, alkyl amines, ठीक है। now before you write any names, no, you should know what type of an amine it is, primary, secondary, tertiary, and then you should go for writing the names, ठीक है। this will avoid unnecessary confusions, ठीक है। see for example
अभी सपोज तुम्हारे पास ये वाला अमाइन है, I'll draw the structure, you tell me the name. Suppose if you have this CH3, CH2, CH2, NH2, ये कौन सा अमाइन है? Aromatic. एरोमेटिक, Aliphatic, Aliphatic. Aliphatic primary, primary amine. Butyl amine. Butyl. 4 कार्बन एटम्स हैं, तो कौन सा अल्काइल ग्रुप हो गया? butylamine, Butyl amine. ब्यूटाइल अमाइन। अभी ये चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन पे है ना, सो देन आई विल कॉल दिस एज व्हाट? एन। N-butylamine, ठीक है, सपोज इफ आई राइट इट लाइक दिस, अभी इसका नाम क्या रहेगा? isobutylamine, Isobutylamine. तो ब्यूटाइल अमाइन। हम कॉमन नेम लिख रहे हैं ना इसके लिए, वी आर यूजिंग दिस टर्म। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल अमाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन, लाइक दैट द नेम्स विल कम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, पहले अल्काइल का नाम आएगा, फिर अमाइन वर्ड आएगा। ठीक है, पहला कौन सा अल्काइल है वो रिकॉग्नाइज करने का, फिर अमाइन लिखने का। ठीक है, अभी सपोज मुझे इसका आयुपैक, ठीक है पहले कॉमन नेम्स कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज सेकेंडरी अमाइन है तुम्हारे पास CH3, अभी सेकेंडरी अमाइन आएगा ना, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, दो आर ग्रुप्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या था, एक ही आर ग्रुप था, तो वो अल्काइल का नाम पहले लिख दिया, अमाइन डाल दिया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर दो आर ग्रुप्स है। अभी ये दो ग्रुप्स सेम भी आ सकते हैं, दोनों अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट यू विल बी डूइंग, क्या करने का, dimethylamine, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई मिथाइल, डाई इथाइल वैसे लिखने का। ठीक है, लेकिन पहला अल्काइल का ही नाम आएगा, डाई मिथाइल अमाइन बन जाएगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पर दो आर ग्रुप है, एक तुम्हारा इथाइल है और दूसरा तुम्हारा मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आर ग्रुप है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि विच वन टू राइट फर्स्ट। सो व्हेनेवर देयर इज अ कंफ्यूजन, टू अवॉइड दैट व्हाट डू वी राइट इट एज पर द alphabetical order, Alphabetic order. पहला कौन सा आएगा, ई आएगा, E. ethyl methylamine, नाम क्या हो जाएगा, इट विल बी इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो देखो कॉमन नेम्स में पहला हम लोग अल्काइल का ही नाम लिख रहे हैं, फिर अमाइन लिख रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे पास टर्शियरी अमाइन है, तो कैसे लिखेंगे, CH3N CH3 CH3, दिस इज टर्शियरी अमाइन। अभी 3 आर ग्रुप है, तीनों आर ग्रुप सेम है, Trimethylamine. trimethylamine, using the prefix tri, so the name will be what, trimethyl amine। ठीक है, सपोज मैंने एक आर ग्रुप अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप्स है ना, तो नाम क्या रहेगा अभी, Ethyl dimethylamine. ethyl dimethylamine, इथाइल डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, तो ई पहला आएगा, फिर डाइमिथाइल आएगा, फिर अमाइन आएगा। ठीक है, सपोज तीनों आर ग्रुप अलग है, देन व्हाट यू विल राइट, अभी क्या लिखेंगे, ethyl methyl propylamine, इथाइल मिथाइल। अभी प्रोपाइल में क्या है, वो स्ट्रेट चेन भी हो N-propyl. एन प्रोपाइल होना जरूरी है। ठीक है, एन प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, इज दिस क्लियर टिल हियर, यस और Yes, ma'am, yes. if we don't write N-propyl, then will our marks be deducted? यस, यू हैव टू राइट इट, क्योंकि जो प्रोपाइल है ना वो कुछ भी हो सकता है ना, इथाइल में क्या है वो Yes, ma'am. हमेशा, लेकिन 3 कार्बन एटम्स है ना, ब्रांचेस शुरू होता है, सो यू हैव टू मेंशन इट। से अभी मैं तुमको है ना, ठीक है, तुम ऐसा उल्टा सोचो ना, सपोज मैडम ने तुमको बोल दिया कि इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन का स्ट्रक्चर बनाओ करके, तो तुमको डाउट आएगा कि नहीं, प्रोपाइल में सीधा डालो कि ब्रांच डालो, डाउट आएगा कि नहीं, Yes, ma'am.
तो फिर वो डाउट अवॉइड करने के लिए हम लोग नंबरिंग वगैरह सब करते हैं ना, ये एन वगैरह सब डालते हैं. सो इट इज अ मस्ट, यू हैव टू पुट इट. ठीक है, ठीक है. अभी Yes. ये एक लास्ट कॉमन नेम करते हैं, इसका नाम बताओ. C6H5. व्हाट इज C6H5? व्हाट इज Benzene. Benzene. याद रख लेना C6H5. फिनाइल. अभी मुझे बताओ इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? Dibenzylamine. When it comes as a substituent, no, we don't use benzyl. Parent name में benzene आएगा, लेकिन substituent alkyl के फॉर्म पे कभी benzyl नहीं लिखते, क्योंकि ना फिनाइल. डाइफिनाइल. Phenol. Phenol. दिस इज कॉल्ड एज benzyl. ये benzyl होता है, तो इसलिए यहाँ पर benzyl नहीं डालने का. दिस इज फिनाइल. मैं बता रही हूँ फिनाइल. अभी बोलो नाम क्या रहेगा? Diphenylamine. दिस डाइफिनाइलअमाइन. ठीक है, दिस इज डाइफिनाइलअमाइन. समझा? Yes, ma'am. ओके. अभी मुझे इसका नाम बताओ. इसका नाम क्या रहेगा? Methylphenylamine. मिथाइल फिनाइल अमाइन. ठीक है, दिस इज मिथाइल फिनाइल अमाइन. इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो. Yes, ma'am. Liya. लिया? ओके. अभी इसका बताना. व्हाट इज दिस? Benzylamine. नहीं, मैंने अभी बोला ना बेंजाइल किसको बोलते हैं? Phenyl. फिनाइल. इट कैन बी सेड एज फिनाइलअमाइन. बराबर. ठीक है, इसको फिनाइलअमाइन बोल सकते हैं हम लोग. बराबर है, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या है? एनालीन. दिस इज द कॉमन नेम. लोग है ना इसको एनालीन के नाम पे ज्यादा पहचानते हैं रादर देन फिनाइलअमाइन. सपोज अभी ना तुम्हारा एक पेट नेम है, तो तुम्हारे एरिया पे आके कोई तुम्हारा ऑफिशियल नेम बोला तो कोई तुमको पहचानेगा क्या? नहीं पहचानेगा ना. तो सिमिलरली ये इसका ऑफिशियल नेम है, मतलब प्रॉपरली ऐसा लिखना चाहिए, बट इसका कॉमन नेम है ना, इसको ऐसा पहचाना जाता है, एनालीन के नाम पे पहचाना जाता है. तो तुम लोग कहीं पर भी देखेंगे ना, इसको एनालीन ही बोलेंगे, फिनाइलअमाइन ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसी का ही नाम है वो. इसका एक और आयुपैक नेम भी है. ठीक है, लेकिन क्या है ना, लोग इसको इसी से पहचानते हैं. सो कहीं पर भी ये दिखा ना ये स्ट्रक्चर, तो ये नाम बाय हार्ट कर लेना. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनालीन. ठीक है, सो henceforth you should remember this structure. ओके, एनालीन बोला तो ये स्ट्रक्चर तुमको याद आना चाहिए. दिस इज एनालीन. ओके, बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच्ड टू NH2. नाउ व्हाट इज एनालीन? एनालीन्स आर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. ठीक है, एनालीन इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. ठीक है, अभी मुझे ये वाला इसका नाम बताओ. सोच के बताने का. CH2NH2. Benzylamine. This benzylamine. Very good. This is benzylamine. मैंने बताया था ना, this group is called as what? Benzyl. So suppose मैंने ना ये इसको ऐसे लिखा, ठीक है, CH2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने OH डाल दिया, तो ये क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? Alcohol. दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल. ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि फिनॉल में OH डायरेक्टली बेंजीन के साथ होता है. दिस इज अल्कोहल. बच्चे लोग इसी में बहुत गलत करते हैं. ठीक है, दिस इज बेंजाइलअमाइन. नाउ टेल मी व्हाट इज बेंजाइलअमाइन? एलिफैटिक की एरोमेटिक? Aliphatic. Aliphatic. Aliphatic.
दिस इज एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अभी मुझे इसका नाम बताना। What will be the name? Methyl phenylamine. Methyl, yes, methyl phenyl amine। ठीक है, मिथाइल फिनाइल अमाइन, या इसको ना ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, एन मिथाइल एनालीन। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, एन मिथाइल एनालीन। एन में मिथाइल ग्रुप है और ये एनालीन है ना, एनालीन से ये बना, एनालीन का एच को निकाल के मिथाइल ग्रुप डाल दिया, तो मिथाइल फिनाइल अमाइन भी बोल सकते हैं या एन मिथाइल एनालीन भी बोल सकते हैं। इसको मोस्ट कॉमनली ना ये नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये नाम बोलेंगे ना थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बट ये नाम सबको मालूम रहता है। ठीक है, अभी इसका नाम क्या रहेगा बोलो? इसका नाम क्या हो सकता है? Dimethyl. Dimethyl Dimethyl phenylamine। N-dimethyl. डाइमिथाइल एनालीन। ठीक है, एन 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 में 2 बार CH3 ग्रुप अटैच्ड है ना, तो एन एन डाइमिथाइल एनालीन। तो तुमको ना ये नाम सब बाय हार्ट होना चाहिए। एनालीन, एन मिथाइल एनालीन, एन एन डाइमिथाइल एनालीन। ओके, अभी मुझे इसका नाम बताना। व्हाट इज दिस? अभी बोलना मत मैडम आप सर्कल डालने भूल गए करके। हाँ? What is this? Cyclohexanamine. साइक्लो, आगे बोलो। साइक्लो, Hexane. साइक्लोहेक्साइल। गुड, साइक्लोहेक्साइल। ये क्या है? बेंजीन नहीं है। बच्चे लोग को क्या लगता है पता है? मैडम भूल गए सर्कल डालने में। क्वेश्चन पेपर में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ना, दे पुट सर्कल एंड दे डू इट। ऐसा नहीं करने का। ये साइक्लोहेक्साइल है, ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो दिस इज साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। अभी ये वाला CH3NH2, एनीवन नोज व्हाट इज दिस? इसका है ना एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज Toluene. टोल्विडिन। ठीक है, अभी टोल्विडिन कभी बोलते हैं जब CH3 और NH2 बेंजीन रिंग में रहेगा ना, तो उसको टोल्विडिन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये दोनों बाजू बाजू में है ना, ऑर्थो पोजीशंस पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो टोल्विडिन। तुम लोगों को मालूम है ना ऑर्थो मेटा पैरा क्या है करके? Yes, ma'am. क्या है? ऑर्थो टोल्विडिन। तो मैं इसका मेटा टोल्विडिन बना सकती हूँ, पैरा भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो मेटा में कैसे बनाएगी? 1 CH3 here, NH2 over here. This is my meta. और पैरा टोल्विडिन will be straight opposite, CH3 NH2। ठीक है, so this is ortho tolvidin, meta tolvidin, and this is para tolvidin। ठीक है, so is the naming clear everyone? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. let's go to the IUPAC normal। ये सारे examples तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में है, you all can go through it। ठीक है, so now comes the IUPAC nomenclature। now IUPAC nomenclature में सिमिलरली यहाँ पर भी करने से पहले पहचानो कि वो कौन सा अमाइन है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। ठीक है, पहचानने के बाद देन यू शुड गो फॉर राइटिंग द नेम्स। सो हियर IUPAC में यू नो हाउ टू राइट द नेम्स, बराबर। पहले तुमको सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना पड़ता है, फिर पेरेंट्स का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट कम्स द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स
देन कम्स द नेम ऑफ द पैरेंट। तो पेरेंट के नेम जब भी लिखते हैं वहां पर ये वर्ड हमको अमाइन करके ऐड करना पड़ेगा, तो पेरेंट के साथ अमाइन वर्ड आता है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। सपोज इफ यू हैव CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पर मेरा पहला काम क्या रहेगा, टू आइडेंटिफाई द पैरेंट चेन। रिमेंबर वन थिंग, पैरेंट चेन हमेशा कार्बन का ही होगा, ठीक है। पैरेंट चेन हमेशा कौन सा चेन होता है, कार्बन वाला चेन होता है, कोई अदर एलिमेंट इसके अंदर आता नहीं है, ठीक है। सो पैरेंट चेन विल बी द चेन ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, okay. So but when you select the carbon chain, you should see to it that the functional group is attached to one of that carbon chain, ठीक है। सपोज तुम्हारा ये पैरेंट चेन है, ये 4 कार्बन में से कोई एक कार्बन पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, उसको छोड़ के कोई चेन को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के चेन जो पैरेंट चेन बनाएंगे ना वो बराबर नहीं होता है। सी व्हाट आई वांट टू से इज आई विल से शो इट लाइक दिस। सी सपोज तुम्हारे पास है ना ऐसा कोई चेन है, ठीक है। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा यहाँ पर लगा हुआ है, मैं H नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। तो अभी तुम लोग देखेंगे तो ये एक चेन बन सकता है ना, ये एक चेन बन सकता है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है दिस कैन ऑल्सो फॉर्म अ चेन। अभी लोग को क्या लगेगा, यहाँ पर 3 6 7 कार्बन एटम है और इधर कितना कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है। तो लोग क्या करेंगे, 7 कार्बन एटम वाले को पैरेंट करके ले लेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, व्हाई दिस इज रॉन्ग? Amine more is not possibility. directly attached. हाँ, यहाँ पर ये चेन का जो कार्बन एटम्स है इसमें NH2 ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है ना, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड ही नहीं है। दो इट इज अ बिग चेन, फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच नहीं है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। भले ये छोटा है लेकिन इसमें NH2 ग्रुप अटैच ना, इसका कार्बन में एक कार्बन में NH2 ग्रुप अटैच्ड है। NH2 होने दो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होने दो, फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन द पैरेंट चेन, तो वैसा वाला चेन ही सिलेक्ट करेंगे, समझा? सो दैट इज द रूल, ओके ओके। सो नाउ सी हियर, सो दिस इज माय पैरेंट चेन, ये मेरा पैरेंट चेन है, और नंबरिंग हम लोग सिर्फ कार्बन को ही करते हैं, ठीक है। एंड नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे that the functional group gets the least number। तो मेरा नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा 1 and 2। अभी 1 फर्स्ट कार्बन में मेरा NH2 ग्रुप है, ठीक है। सो हाउ आई विल राइट द नेम, पैरेंट में कितना है कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ईथेन है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल रिमूव दिस E, okay, and then I'll put the word amine। So the name is ethanamine। अभी यहाँ पर ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम NH2 को इधर डालो या इधर डालो ये 1 ही रहने वाला है, so no need to mention it over here। तो इसका नाम क्या रहेगा, ethanamine रहेगा, ठीक है। ये अपना लास्ट टाइम हो गया था, so I hope you all remember it। CH3 NH2 CH2 CH3। अभी इसका नाम क्या होगा, what will be the name? Butanamine। Butane 2-amine. First the parent chain, the name is correct। parent chain क्या है, this is my parent chain, बराबर, ये मेरा parent chain है। See I have 2 possibility of numbering it, but I'll number it from here only। why here only, why here only? क्योंकि यहाँ से मुझे least number मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को, है ना। when I do it from this side, no, तो मुझे 1 2 3 नंबर मिलेगा, यहाँ से करेगी तो 2 मिलेगा। so I'll be giving the least number to my functional group। तो पहला में क्या लिखेगी, यहाँ पर तो कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है ना, तो वी विल राइट डायरेक्टली द नेम। तो 4 कार्बन है तो इसका क्या रहेगा, ब्यूटेन, ठीक है। अभी 2 में अमाइन है, सो E को हटा देगी मैं, ओके, E को हटाएगी, एंड इन दैट प्लेस व्हाट आई विल पुट, ब्यूटेन -2 -amine।
In some book you will see it like this, butanamine. Both are correct. ठीक है, अभी ये नया ट्रेंड है ऐसा लिखने का, ये पुराना वाला है. So we write it. ये लिखना बहुत इजी भी है. समझा क्या? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी ये वाला मुझे बताना. Tell me for this one. अभी इसका नाम बताओ. पहले पैरेंट चेन देखना. This will be your parent chain. You can select it like this also, but both are giving 4 carbons, so you can select any one, no problem. अभी numbering कैसे करेंगे? That is a big question. How are you going to number it? Numbering should begin from where? From your 1, Yes, ma'am. 2, 3, 4. Then only my functional group will get the least number. Now tell me the name. चलो अभी नाम बताओ. Three methyl butanamine. Yes, correct. 3 methyl. 4 कार्बन एटम्स है पैरेंट का. देखो मैंने पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, अभी मैं पैरेंट का नाम लिख रही हूँ. तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन. अभी ब्यूटेन का ई हटा देंगे ना हम, तो ई नहीं आएगा, डैश. अभी कहाँ पर है NH2 ग्रुप? फर्स्ट कार्बन पे है ना, सो इट विल बी 1 अमाइन. So it is 3 methyl butane 1 amine. This NH2 group can be in 2 carbon atom also, no? ठीक है, समझा क्या ये वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now tell me for this one. Tell me for this one. Two dimethyl, two methyl, One second. two dimethyl, Okay. pent 3 amine. And 3 amine. Okay. Numbering कहाँ से करेंगे हम? From left. Yes. Or from wherever, because they're going to go 3. From left. Yeah, from both the places same number is coming now. Both the, so यहाँ से भी करो. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ से किया तो अपना फंक्शनल ग्रुप इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला? इट इज गेटिंग द 3 नंबर. यहाँ से किया तो 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ से किया तो भी वही नंबर मिला. तो इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? Anyone. ऊपर. नहीं बोल सकते ऊपर वाला. क्योंकि हाँ एनीवन नहीं होगा, क्योंकि ना फंक्शनल ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो सबसे छोटा वाला नंबर ही लेने का. समझा? सो दिस विल बी द आइडियल वन. तो ऊपर वाला ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि छोटा नंबर मिल रहा है ना. ठीक है, सो यू विल राइट द नेम विल गो लाइक दिस. 2,2 dimethyl. The one who said the answer, that person did not tell me this number. नंबर बोलने का 2 में 2 बार है ना, सो 2,2 डाईमीथाइल. पैरेंट चेन में 5 कार्बन एटम है, सो इट इज पेंटेन. ओके, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? थर्ड पोजीशन पे. सो इट इज 3 अमाइन. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी दिस वन. इज इट ओके? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमाइन में ना तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
क्योंकि एक ही R ग्रुप है, सो यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंडरी अमाइंस. अभी सेकेंडरी अमाइंस में क्या प्रॉब्लम आएगा? सेकेंडरी अमाइंस में 2 R ग्रुप्स रहेंगे. यहाँ पर क्या था, एक ही R ग्रुप था ना, अभी 2 R ग्रुप रहेगा. तो 2 R ग्रुप रहेंगे, तो IUPAC नेम कैसे लिखने का, लेट्स सी दैट. ठीक है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं. ठीक है. CH3 CH2 NH CH3. देखो अभी यहाँ पर 2 R ग्रुप है. कैन यू ऑल सी दिस? ये एक CH3 है और एक है तुम्हारा ये वाला ग्रुप. ये तुम्हारा इथाइल है और ये तुम्हारा मिथाइल है. ठीक है. तो 2 R ग्रुप है. नॉमेनक्लेचर IUPAC में हम लोग कभी भी कैसे लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं. यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या? नहीं है. ठीक है. लेकिन अभी हमको ना पैरेंट चेन लिखने का है. यहाँ पर क्या था, प्राइमरी अमाइन में एक ही पैरेंट चेन था, वो हमने लिख दिया. लेकिन यहाँ पर 2 R ग्रुप है ना, तो 2 R ग्रुप है और दोनों अलग अलग है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर. तो दोनों ग्रुप जब ये अलग अलग रहेगा ना, उसमें से पैरेंट चेन किसको बनाएंगे? जिसमें ज्यादा कार्बन एटम है उसको पैरेंट बना देने का. ठीक है. आई विल रिपीट इट. व्हेन यू हैव 2 R ग्रुप्स एंड व्हेन दे आर डिफरेंट, ठीक है, उसमें से जो R ग्रुप में ज्यादा कार्बन एटम है, ठीक है, द वन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट विल बी द पैरेंट चेन. और जो बचा है ना, उसको हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स बना देंगे. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप? व्हाट डिड आई से? यस और नो? Ma'am, can you repeat it? सी यार, यहाँ पर 2 R ग्रुप है कि नहीं? 2 R ग्रुप है ना. तो 2 R ग्रुप में से कौन सा R ग्रुप बड़ा है? मतलब किसमें कार्बन ज्यादा है? आउट ऑफ दिस 2, Methyl. ईथर में कार्बन एटम ज्यादा है ना, तो ये क्या बनेगा? ये तुम्हारा पैरेंट बनेगा. ठीक है. तो ये R ग्रुप क्या बनेगा? तुम्हारा पैरेंट बनेगा. ये तुम्हारा हम कैसे ट्रीट करेंगे? दिस वी विल ट्रीट इट एज अ सब्स्टिट्यूट. Substituent. समझा? Yes, ma'am. Thank you. अभी इसका नाम कैसे लिखने का? अभी ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं. सो हाउ आई राइट इट फर्स्ट? कैसे लिखेगी देखना. अभी ये जो CH3 है ना, डायरेक्टली ये N के साथ अटैच्ड है, तो इसके लिए ना इसका नेमिंग ऐसा होगा, N मिथाइल. ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया. ठीक है. N मिथाइल. अभी ये मेरा पैरेंट है, तो पैरेंट का नाम कैसे लिखने का तुमको तो मालूम ही है. पैरेंट में 2 कार्बन एटम्स हैं, सो इट इज एथेन. इथेन का ई हटा दिया मैंने, एथेन. फिर लास्ट में ई को हटा के उस जगह पर क्या डाल दिया? अमाइन. तो इसका नाम क्या हो गया? एन मिथाइल एथेन अमाइन. ओके. यहाँ पर है ना, कैपिटल एन ही यूज करना है. वो जो स्मॉल एन हम लोग यूज करते हैं ना, वो अलग है. ये एन क्या बता रहा है? दिस एन इज ऑफ नाइट्रोजन. ये मिथाइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वो बता रहे हैं हम लोग. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी. सी हियर, CH3 CH2 CH2 NH में अलग अलग कलर से लिखती हूँ, CH2 CH3. अभी मुझे बोलो यहाँ पर कौन पैरेंट बनेगा? Who will become the parent? N propyl. Huh? Who will become the parent? N propyl. N प्रोपाइल. 2 अलग अलग ग्रुप्स है. ठीक है. इसमें कार्बन चेन बड़ा है, तो ये तुम्हारा बनेगा पैरेंट. मतलब इसका नाम हम लोग एंड में लिखने वाले हैं. पैरेंट का नाम हमेशा एंड में आएगा. और ये तुम्हारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो मतलब इसको हम पहले लिखने वाले हैं. ठीक है. तो मैं इसको पहले कैसे लिखेगी बोलो? कैन एनीवन स्टार्ट एट हाउ आई विल राइट? N-methyl. N-methyl N-ethyl propylamine. propanamine. Propanamine. अमाइन. बराबर. ठीक है. Yes, ma'am. N-ethyl propanamine. This is the name of it. Okay, let me write one more example.
आई डोंट वांट टू मेक इट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। अभी बोलो। N-ethyl butanamine. N-ethyl butanamine। समझा सबको? Yes, ma'am. Take a screenshot of this. Take a screenshot. तुम लोग लिखते नहीं है ना अभी, बट बाद में लिखना, अदरवाइज यू विल नॉट रिमेम्बर एनीथिंग। Yes, ma'am. ओके, आई होप इट इज डन। अभी मुझे इसका नाम बताना। अभी बोलो। इसका नाम कैसे लिखेंगे? दोनों आर ग्रुप सेम है, तो दोनों आर ग्रुप सेम है तो क्या करने का? हाँ, N, N dimethyl dimethanol. हम आयुपैक नेम, Methanamine. हम आयुपैक नेम लिख रहे हैं, तो आयुपैक में ना दोनों आर ग्रुप एक साथ नहीं डाल सकते हैं, पैरेंट बनाना ही पड़ेगा ना। इन आयुपैक वी वांट अ पैरेंट चेन, तो एक को पैरेंट बनाना ही पड़ेगा। तो दोनों ग्रुप सेम है तो कंसिडर एनीवन, नो डिफरेंट। N-methane methanamine. So it will be what? N-methyl। एक को मैंने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, N-methyl, इसको पैरेंट बना दो, Methanamine. methanamine। ठीक है, N-methyl methanamine। So when you have both the R groups, no, then take any one as substituent and the other one as parent, no problem। लेकिन जब ये दोनों R group अलग अलग होता है ना, then you have to see the carbon atoms and write it properly। तो अभी मुझे इसका नाम बताओ। अभी इसका नाम क्या होगा? N-ethyl ethanamine. N-ethyl ethanamine। समझा? ये बहुत इजी है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो तुम लोग नेमिंग करते वक्त तुमको मालूम होना चाहिए वेदर इट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, मिक्स्ड है कि सिंपल है, वो भी मालूम होना चाहिए, तो तुम लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी का। अभी चलते हैं हम लोग टर्शियरी में। ठीक है, तो टर्शियरी में सपोज तीनों आर ग्रुप सेम है, तो हम इसका नाम कैसे देंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी, वी आर टॉकिंग अबाउट आयुपैक नॉमेनक्लेचर, राइट? तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर में एक को तो पैरेंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आर ग्रुप सेम है तो एक को पैरेंट बना लो, कोई एक को। तो मैंने एक पैरेंट बना दिया, तो बाकी दो क्या बन जाएगा मेरा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो अभी मुझे बोलो इसका नाम क्या होगा? N-methyl N-dimethyl methanamine। विल बी N, N डाइमीथाइल। N के साथ 2 बार CH3 ग्रुप है ना, तो यू विल हैव टू राइट। अभी डोंट बी लेजी नाउ। स्टूडेंट्स करते हैं ये सब काम, बोलते कि 2 बार क्यों लिखने का, एक ही बार लिखेंगे, वैसे डालते। नो, यू हैव टू मेंशन इट ट्वाइस। ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो इट इज NN डाइमीथाइल मेथेन अमाइन। ठीक है, suppose if it is like this, C2H5 N C2H5 C2H5, नाम क्या रहेगा? N, diethyl methanamine। Diethyl ethanamine. NN diethyl ethanamine। ठीक है, अभी मुझे ये वाला बताओ, CH3N। इफ आई एम फास्ट लेट मी नो, समझा नहीं तो बताओ मुझे। अभी इसका नाम बोलो, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ग्रुप अलग है, दो सेम है। N, N dimethyl
ethanamine. Very good. Who is that? नाम Shravani. श्रावणी. ओके. सी यार, अभी यहाँ पर ये तीनों ग्रुप अलग है ना, मतलब एक ग्रुप अलग है, तो अलग इसमें कार्बन एटम ज्यादा है ना, तो जो कार्बन एटम ज्यादा है वो तुम्हारा पैरेंट बन जाएगा. सो दिस विल बी योर पैरेंट एंड ये तुम्हारा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा. सो इट विल बी N, डाइमिथाइल एथेन अमाइन. ठीक है, समझा गया सबको? Yes, ma'am. किसी को डाउट है तो स्टॉप मी एंड आस्क. ओके, we'll take one more example. C2H5 N CH3 C2H5. What will be the name? N comma N N-methyl methyl ethanamine. N comma N. Ethyl Ethyl methyl methyl ethanamine. I didn't get it. What did you say? ethyl methyl ethanamine. अभी पैरेंट किसको बनाया? इथेन को. Yeah. एक इथेन को पैरेंट बना दिया तो ए दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो दो Yes, ma'am. substituent अलग है तो हम दोनों साथ में नहीं डाल सकते. तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, N ethyl N methyl methyl ethanamine. ऐसे आएगा. ठीक है. Ma'am, in this also, like, do we have to write Yes. methyl first, like alphabetical thing? No, ethyl will come first, no? Yeah, ethyl first. Like in this also, we have to use the alphabetical order, no? हाँ हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग. ठीक है, दो आर ग्रुप अलग है ना, तो अल्फाबेटिकली लिखने का. लेकिन मैं क्या बोल रही थी कि दोनों एन को साथ में नहीं डालने का. ठीक है, दो सी व्हेन यू राइट 2, ऐसे कभी लिखते हैं व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर सेम तो लिखते हैं ना. अब ये ग्रुप दोनों अलग अलग है तो तुमको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा. एन इथाइल Yes, ma'am. एथेनामाइन. समझा गया अभी? Yes, ma'am. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. Yes, ma'am. Done. अभी मुझे ना इसका नाम बताना, थोड़ा सोच के बताना. आई गेस सी यहाँ पर है ना, मुझे किसी का नाम कुछ नहीं दिख रहा है. मुझे भी इसका सेटिंग भी क्या है पता नहीं है, तो प्लीज एवरीवन पार्टिसिपेट. C2H5 N CH3 CH CH3 CH3. थोड़ा खतरनाक लग रहा है बट ध्यान से करो. टर्शरी अमाइन है, 3 आर ग्रुप है, 1 2 3. पैरेंट कौन बनेगा? C2H5. इसे I'm third. C3. प्रोफाइल बनेगा ना, पैरेंट बिकेम. वाला बनेगा ना, 3 कार्बन है ना इसमें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तुम्हारा पैरेंट रहेगा, ये दोनों तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा. तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं. तो N N-ethyl, N-methyl. यहाँ तक क्लियर है? अभी पेरेंट नेम देखो, ये तुम्हारा पेरेंट है, तो पेरेंट चेन में क्या हो गया, अभी ये ना ऐसे बीच में से ब्रांचिंग से हो रहा है ना, तो तुमको यहाँ पर नंबरिंग करना पड़ेगा. ब्रांचेस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमको नंबरिंग करना पड़ेगा. ऐसे ये ऐसे भी हो सकता था ना, C2H5 NCH3, ये ऐसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना. दूसरा कार्बन पे ये नाइट्रोजन अटैच्ड है, बराबर. तो तुमको यहाँ पर नंबरिंग करना जरूरी है. तो ये पैरेंट चेन को नंबरिंग करने का 1 2 3. समझा? पैरेंट चेन को Yes, नंबरिंग. ma'am. सेकेंड कार्बन पे ये नाइट्रोजन अटैच्ड है ना, तो इसका नाम तुम्हारा क्या रहेगा? इट विल बी प्रोपेन 2 अमाइन. जैसे नॉर्मली हम लोग नंबरिंग करते थे ना, वही वाला है. ठीक है, समझा क्या? Yes, ma'am. प्रोपेन 2 अमाइन. नहीं समझा तो पूछो. Ma'am, why did we give the second number to the carbon which is attached to the end? पैरेंट चेन है ना,
तो पैरेंट चेन को हम लोग नंबरिंग एंड से ही कर सकते हैं, इधर से करो या इधर से करो ना, सो इट गेट्स सेकेंड नंबर ओनली, नो? Yes, ma'am. है ना? चेन, पैरेंट चेन बोलेंगे तो एंड से ही नंबरिंग करने का, बीच में से कभी तुम ऐसा मत सोचना कि नाइट्रोजन इस पे अटैच है तो इसको नंबर 1 आएगा, वैसा नहीं आएगा। जो चेन है उसका एंड से ही शुरू होगा, तो वैसे देखेंगे तो यही नंबरिंग आएगा। समझा क्या Yeah. अभी? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। बाकी का बहुत सारे एग्जांपल्स है तुम्हारे बुक में, ठीक है, वो तुम लोग देख लेना, जो समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे पूछना। नाउ आई विल टेक मिक्स्ड एग्जांपल ना, फ्यू मिक्स्ड एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी हाउ फार यू ऑल कैन डू इट। CH2 अब मुझे इसका नाम, सी गो सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना। तुम लोग मुझे इसका ना आयुपैक नेम ही देना, आयुपैक नेम इज वेरी इजी टू गिव, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाओ, पहले पेरेंट्स देखो, देन हाउ यू राइट द फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग करो, फिर नेमिंग करो, गो स्टेप बाय स्टेप। Prop 1 enamine. तो Prop 1 in 3 amine. So 1 in 3 amine. Okay. Anyone else? एक आंसर आया, कोई अदर आंसर? 1 propanamine. 1 propanamine. डबल बॉन्ड भी है, वो तुमने डाला ही नहीं, इसलिए मैंने बोला धीरे धीरे जाओ करके। Propene 1 amine. Propene 1 amine. Okay, any other answer? Any other answer? ठीक है, लेट मी सॉल्व इट। तीनों बराबर नहीं है, सिया थोड़ा ना धीरे जाने का। फर्स्ट मैंने क्या बोला, वी हैव टू सिलेक्ट द पैरेंट चेन, एंड पैरेंट चेन पे क्या होना जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है? सो दिस इज माय पैरेंट चेन, ठीक है? सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग है ना पहला इंपॉर्टेंस नहीं देते इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है? सो व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इसी को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है। सो इसको छोटा नंबरिंग कभी मिलेगा, व्हेन आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3, समझा क्या? फंक्शनल ग्रुप को पहला छोटा नंबर देने का, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा। सपोज कोई हाइड्रोकार्बन का चेन है, उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है? सपोज फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, अदरवाइज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देने का, पहले फंक्शनल ग्रुप को ही देने का। सो सम ऑफ देम हैव डन दैट मिस्टेक्स आल्सो। देखो यहाँ पर इसने 3 अमाइन बोला है, तो इसने पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है, ठीक है? तो सी हियर नंबरिंग शुड गो लाइक दिस 1 2 3। अभी यहाँ पर 3 कार्बन एटम है पैरेंट चेन में, सो आई विल राइट इट लाइक दिस, ठीक है? प्रोप, एक्चुअली पैरेंट हाइड्रोकार्बन शुड बी प्रोपेन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड भी है, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, इट इज नॉट प्रोपेन, इट इज प्रोप 2 इन, बराबर? ये प्रोप 2 इन हो गया, 2 में डबल बॉन्ड है ना, 2 और 3 के बीच में है तो 2 कंसिडर करते हैं हम लोग, तो प्रोप 2 इन हो गया। अभी अपना आएगा फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या आएगा, अमाइन है, तो मुझे ये ई को हटाकर वहां पर अमाइन डालना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल राइट हियर, प्रोप 2 इन डैश 1 अमाइन, समझा क्या? सो दिस शुड बी, Yes, ma'am. सी मैंने इसको 1 लिखा क्यों, क्योंकि ये NH2 इधर भी मैं डाल सकती हूँ ना, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन वी हैव टू पुट द नंबर, सो द नेम इज लाइक दिस, prop 2 in 1 amine।
जो इम्पोर्टेंट वाला है, जो सिग्निफिकेंट है, जो पेरेंट है, उसी का नाम हमेशा एंड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन एंड में नहीं आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और अमाइन को कंपेयर करेंगे तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका ना एक चार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप सब ऊपर आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट नीचे पड़ा हुआ रहता है। तो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो पहला प्रायोरिटी इसी को देने का। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करेक्ट आंसर इज दिस, prop 2 in 1 amine। ठीक है, अभी इसका आंसर देना मुझे। इसका है ना कॉमन नेम है अलाइल अमाइन। इसका कॉमन नेम क्या है? अलाइल अमाइन। दिस यू विल हैव टू बाय हार्ट इट, अलाइल अमाइन। ये ग्रुप को है ना अलाइल बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, तो इसको अलाइल बोलते हैं। दिस इज अलाइल अमाइन। अलाइल बोलने का एक और भी तरीका है। सी देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना। sp2 के बाद ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? तुमको मालूम है ना हाइब्रिडाइजेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. sp2 है, फिर sp3 में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना। तो ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम लोग उसको अलाइल बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज अलाइल अमाइन, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, अभी इसका नाम बताना। CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नाम क्या रहेगा? यहाँ पर 2 बार NH2 ग्रुप है। पैरेंट चेन तुम्हारा कौन सा रहेगा? ये तुम्हारा पैरेंट चेन रहेगा, है ना। पैरेंट चेन में सिर्फ कार्बन ही लेते हैं ना हम लोग। नंबरिंग करो 1 2, तो व्हाट विल बी द नेम? नाम क्या रहेगा अभी बोलो, ट्राई। One amine, two Ethane. amine, इथेन 1 amine, 2 amine, 1 अमाइन 2 अमाइन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। इथेन 1,2 डाइअमाइन। Ma'am, there won't be a strike of E. हाँ, that is the important point here, huh? See, whenever you have two same functional group, no, जब भी दो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना, we do not drop this letter E, हम लोग इसको पूरा रखते हैं। देखो अभी 2 वॉवल बाजू में नहीं आ रहा है ना, इसके बाद D आ रहा है ना। वॉवल दोनों E का निकालने का मेन ये क्या था, 2 वॉवल बाजू में नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम लोग E निकाल रहे थे ना। जैसे कि इथेन अमाइन, ई और ए दोनों क्या है? वॉवल्स है, तो इसलिए हमने इसको हटा के ए डाल दिया था, इसको एथेनामाइन हम लोग बोल रहे थे, बराबर। लेकिन यहाँ पर वॉवल्स का प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फुल नेम रिटेन करते हैं, वी पुट इट एज इथेन। समझा क्या? whenever you have two same functional groups, no, you don't have to replace the letter E। से सपोज तुम्हारे पास ऐसा आ गया CH2 CH2 OH OH, तो इसका नाम क्या रहेगा? इथेन 1,2 डायोल रहेगा, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ गया OH OH, 3 सेम OH ग्रुप आ गया, तो इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल रहेगा। समझ में आ रहा है? So when you have same functional group repeated, then you don't have to remove that letter E। समझ रहा है क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ, मैंने दूसरा फंक्शनल ग्रुप के साथ बताया, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। टेक दिस वन, NH2 CH2 6 times। अभी बताओ
Hexane 1,6 diamine. हेक्सेन 1,6 डायमाइन, बराबर। इसमें भी देखो हमने ई को रिप्लेस नहीं किया। अभी इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। हेक्सा मीन 6 मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 को मिथाइलिन बोलता है। So hexamethylene diamine, this is a common name. ये तुम्हारा common name है इसका, ठीक है। So in your textbook you have many more examples. You all can solve that. उसमें कोई problem रहेगा ना तो मुझे next class में पूछ लेना। Is this clear? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Okay, now we will start with the preparations. So तुम्हारा halogen chapter पूरा हो गया ना कि चल रहा है? No, ma'am. It's in progress. डेरिवेटिव चालू है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यू ऑल आर फेमिलियर नाउ। हर एक चैप्टर में ना तुम लोगों को क्या क्या आएगा? प्रिपरेशन आएगा, देन उसका केमिकल रिएक्शंस आएगा, ठीक है, देन उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, देन उसका यूजेस आएगा, ठीक है। सो इन एवरी चैप्टर यू विल हैव ऑल दिस थिंग्स। जैसे कि अभी अपना ये कौन सा चैप्टर है? ये अमाइंस का चैप्टर है ना। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि अमाइंस को बनाते कैसे, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि सब तो नेचुरली नहीं मिलेगा ना हमको, लेबोरेटरी में हमको कुछ कुछ बनाना भी पड़ता है। सो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, सो दोस प्रिपरेशन मेथड्स वी विल बी सीइंग, ठीक है। अभी इसको बना तो लिया, बनाने के बाद इसका कुछ तो काम होना चाहिए ना, इट शुड बी मेड टू रिएक्ट विद समथिंग। तो वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा वो हम लोग केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यूजेस क्या है, अभी बना लिया हमने, अभी इसको हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या यूज हो रहा है उसका, तो वो भी हमको पढ़ना पड़ता है। खाली फुकट थोड़ी ना टाइम पास के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसका कुछ एप्लीकेशंस है ना माइंड्स का। So it is a very important role, that is very important, so you should know whatever you study उसका यूज क्या है वो तुमको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसका यूजेस पढ़ेंगे, फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दिखता कैसा है, लिक्विड रहता है कि सॉलिड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो सब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी चैप्टर्स में ना ये सारे स्टेप्स तुम्हारा रहेगा ही, एवरीवेयर यू आर गोइंग टू स्टडी, हर एक का, हैलोजेंस होने दो, अल्कोहल्स होने दो, फिनॉल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स, सबका ये कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So we will begin now with the preparations of amines, and these are very very important questions, सब इसी के ऊपर से बनते हैं, ठीक है। So I want everyone to please be active, ठीक है, please pay attention all of you. Okay, let us begin now with the preparations. So preparations of amines, ठीक है। So whenever you start with anything, no, you should know first इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ पढ़ने के पहले तुम लोग ये देखते हैं ना कितना चैप्टर्स है इसके अंदर, तो वैसे अमाइंस बनाने के लिए कितना प्रिपरेशंस है, कितने मेथड्स है, वो हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। तो तुम्हारा आएगा इसमें पहला मेथड, बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये तुम्हारा पहला प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड इज बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, सेकेंड इज बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। थर्ड रहेगा बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स, ठीक है, बाय हट करते जाओ कौन से मेथड्स हैं। फोर्थ मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। फिफ्थ मेथड इज गैब्रियल, very important method, thaliamide synthesis, Gabriel thaliamide synthesis. And the last method is Hoffman's degradation,
इसका बहुत सारा नाम है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी बोलते हैं, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड भी बोलते हैं। तो ऐसे 3 नाम है इसका। हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, समझ के रखेंगे। So these are the 6 methods for preparations of amines. So I'll repeat it once again. First वाला क्या है? By ammonolysis of alkyl halide. ठीक है। Second वाला is reduction of nitro compounds. Third, reduction of alkyl cyanides. Reduction of amides. Gabriel thalamide synthesis. And the last one is Hoffman's degradation. ठीक है। तो एग्जाम में ना अमाइंस का प्रिपरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया तो आग बंद करते ही 6 मेथड्स पूरा तुमको याद आना चाहिए। सो दैट मच यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। सो नाउ आउट ऑफ द 6 मेथड्स आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड मेथड फर्स्ट। ये थोड़ा इजी है, तो सेकेंड मेथड से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। सेकेंड मेथड आई विल स्टार्ट, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। सो बिफोर आई स्टार्ट with reduction, can anyone tell me the definition of reduction? What is reduction? Can you define it? Addition of hydrogen or removal of Addition of hydrogen, correct. Any other definition? Removal of oxygen. Removal of Of oxygen. oxygen, yes. ठीक है। So I'll stick to this only simply. और भी इसका बहुत सारा definitions है ना, in terms of electronegative element, electropositive elements, in terms of electrons भी है, Yes, ma'am. definitions है ना। तो now I'm not going into that one. ठीक है। मैं सिर्फ ये इसी के ऊपर से तुमको एक्सप्लेन करती हूँ। addition of hydrogen या removal of oxygen, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है ना। Addition of oxygen and removal of hydrogen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा होता है। ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हम लोग उसको रिडक्शन बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूवल, जरूरी नहीं है कि सब में हाइड्रोजन ऐड ही होगा, कहीं पर ऑक्सीजन रिमूव भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शंस करके बोलेंगे। ठीक है। तो देखो अभी हमको है ना यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड से अमाइंस बनाना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड? जनरल फॉर्मूला क्या है? RNO। ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें NO2 ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। अभी मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड है, अभी ये नाइट्रो कंपाउंड को मुझे अमाइन में कन्वर्ट करना है। मैं प्रिपरेशन पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे अमाइन प्रिपेयर करना है। तो अमाइन का तुम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, RNH2। मान लो अभी तुम लोग प्राइमरी अमाइन का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी RNH2 है। सो नाउ जस्ट केयरफुली एनालाइज दिस टू। इन दोनों को ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास था एंड यू डिड समथिंग एंड यू गॉट दिस वन। कुछ करने के बाद ये मिल गया। तो यहाँ पर हुआ क्या? व्हाट हैज हैपेंड हियर? व्हाट हैज हैपेंड हियर? Removal of oxygen. Yes, you have removed the oxygen, है ना। ऑक्सीजन को निकाल दिया, निकाल के ऐसे ही छोड़ दिया क्या? नहीं, उस जगह पर किसको भर दिया? हाइड्रोजन। Hydrogen. So you have added what? You have added hydrogen. तो रिमूव, ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को डालेंगे तो तुमको क्या मिल रहा है? अमाइन मिल रहा है। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? We call this process as what? Reduction. बराबर? समझा? तो मतलब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो तुमको क्या मिलने वाला है? अमाइंस मिलने वाला है। Have you understood this step? Yes, ma'am. So when you have a nitro group with you, you will have to do reduction. So when you do reduction, ये NO2 का O निकल जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन को निकाल देंगे और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो हमको अमाइन मिल जाएगा। ठीक है। अभी मुझे बताओ, ऐसे सिर्फ बोलने पर थोड़ी ना होगा। नाइट्रो ग्रुप अपने आप थोड़ी ना NH2 बन जाएगा, नहीं ना। यहाँ पर हम लोगों को कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वो केमिकल्स क्या रहेगा? इट विल बी अ रेड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है। अब ये रेड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? रिडक्शन करना। ठीक है, सो रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, रिडक्शन करना है तो रेड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो मुझे नाइट्रो ग्रुप को रेड्यूस करने का रहेगा। ये टर्म्स तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ? तो कोई तुमको बोल रहा है रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो याद आना चाहिए, अच्छा रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को निकाल कर उस जगह पर हाइड्रोजन डाल रहा है। ठीक है, और ये काम कभी होता है पूरा? बाय यूजिंग अ रेड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, अब ये रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या क्या है ये सब तुमको बाय हार्ट होना चाहिए। अब ये रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है? मेटल एंड एसिड का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कहाँ गया मेरा कर्सर? मेटल प्लस एसिड, ये क्या होता है? रेड्यूसिंग एजेंट होता है। फॉर एग्जांपल टिन, टिन एंड HCl, आयरन एंड HCl, जिंक एंड HCl। ठीक है, ये सब क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो तुम लोग यहाँ पर इनमें से कुछ भी एक यूज करो, टिन HCl डाल दो या आयरन HCl डाल दो या जिंक HCl डाल दो, तो ये तुम्हारा ये काम करके दे देगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो मेटल एसिड इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये नहीं यूज कर सकते तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, directly we can put what? We can remove oxygen and we can put hydrogen by using what? Hydrogen और निकल, पलेडियम, प्लैटिनम। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेन क्या है, अपने को हाइड्रोजन गैस चाहिए ना, तो हाइड्रोजन गैस यूज करो। लेकिन हाइड्रोजन गैस सिर्फ यूज करने पर ना रिएक्शन फास्ट नहीं होता है, हमको ना कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये कैटलिस्ट है, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। तो निकल, पलेडियम, प्लैटिनम, तो इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी क्या है? अपना रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये हो गया। एक और भी है, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट है। तो तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है, तुम लोग कुछ भी यूज कर सकते हो ये नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए। समझा गया? तो जब भी तुमको रिडक्शन करने का रहेगा ना, you have to use what? Reducing agent. Reducing agent क्या है? Metal plus acid is a reducing agent, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। यू कैन यूज हाइड्रोजन गैस, उसके साथ कोई एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट, और तीसरा ऑप्शन क्या है तुम्हारा? लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी गुड reducing agent it is. Did you all understand till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now see, अभी ये मेटल और एसिड ना, मैं तुम लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देती हूँ। अभी ये मेटल और एसिड क्या करता है, ऐसे देखो, अभी यहाँ पर है ना NO2 NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको मेनली क्या चाहिए? हाइड्रोजन ही चाहिए ना। हाइड्रोजन रहेगा तो ये ऑक्सीजन को निकाल कर उस जगह पर हम लोग हाइड्रोजन डाल सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए ना हम लोग को मोस्ट वांटेड चीज क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन विच वी नीड फॉर रिडक्शन। तो जब भी ना मेटल और HCl को ऐड करते हैं ना, व्हेनेवर यू रिएक्ट मेटल एंड HCl टुगेदर, यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होती है, मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, ये एसिड का H को बाहर फेंक देता है, समझा? ये H को बाहर निकाल देता है, और ये H को हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, एंड दैट हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद आवर नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो तुम लोगों ने ना कॉलेज में देखा होगा एसिड्स वगैरह सब किस में स्टोर करके रखते हैं? हाँ, कोई प्लास्टिक बॉटल में, मेटल बॉटल पे, या ग्लास बॉटल पे, किस में रखते हैं? Glass. bottle. एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स, नो? क्यों उसको मेटल कंटेनर में स्टोर करने का ना, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि Will react with the metal. मेटल कंटेनर के साथ HCl को डाल देंगे ना, तो क्या करेगा? ये मेटल और HCl रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, ये पूरा मेटल डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें से बाहर क्या निकलते रहेगा? हाइड्रोजन गैस निकलते रहेगा।
समझा? तो इसके लिए हमेशा मेटल और HCl को, एसिड को साथ पे नहीं रखते, ठीक है? तो उसी का फायदा हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। ये मेटल और एसिड को साथ में डाल रहे हैं, तो डालते ही हाइड्रोजन निकल रहा है जो हमको चाहिए, तो वो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये NO2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आया क्या अभी? Yes, ma'am. Yes. तो यू कैन यूज टिन, आयरन या जिंक, इन तीनों में से कोई एक मेटल यूज कर सकते हैं। या तुम लोग डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस ही यूज करो ना, अभी इतना ज्यादा लंबा क्यों जाने का, डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस यूज करो। लेकिन डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस यूज करते समय ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, तो इसका फास्ट करने के लिए हम लोग कोई एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल, प्लैटिनम या पलेडियम। एक्चुअली ना ये बहुत कॉस्टली होता है, दिस इज वेरी कॉस्टली ये कैटलिस्ट, ठीक है? सो मोस्टली इसके लिए ये यूज नहीं करते। अभी ये वाला, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई? इसके पास देखो 4 हाइड्रोजन एटम्स है ना, 4 हाइड्रोजन एटम है इसके पास, तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें थोड़ा भी पानी लग गया ना, इट विल एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग, ठीक है? इट विल एक्सप्लोड, ठीक है? इतना गंदा रिएक्शन करेगा ये। तो इसको ना करते समय पानी से बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो गलती से भी पानी लग गया ना इसके ऊपर, इट विल रिएक्ट लाइक एनीथिंग। तो इसके लिए ये थोड़ा यूज करने में ना थोड़ा डर लगता है, ठीक है? सो वी गो फॉर दिस वन, मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन के लिए जाते हैं। सो मोस्टली है ना, तुम लोग रिडक्शंस करके देखेंगे ना, तो ये मेटल और एसिड्स का रहेगा। सो हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर एवरीवन? Yes. ठीक है? सो RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड व्हाट? अ रिड्यूसिंग एजेंट which will be bringing about the reduction process, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टाइम आई विल बी आस्किंग यू ऑल कि कितना मेथड्स है, क्या क्या है, रिडक्शंस क्या है, सब पूछेगी मैं, यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट। Yes, ma'am. हो गया? मैम फर्स्ट मैम स्लाइड मिनिमाइज कर। और कुछ नहीं है रे नीचे? मैम फर्स्ट स्लाइड ऊपर वाला, ऊपर कुछ नहीं है। इतना ही है। एंड प्लीज राइट इट डाउन इन द नोटबुक। जब केमिस्ट्री है ना, बिना लिखे कुछ होता नहीं है, यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। सिर्फ सुनने से कुछ याद नहीं रहेगा। Yes, ma'am. या डन? Yes, ma'am. Yes. यस मैम I'll stop it here now. Next time I'll be continue. तो तुम्हारा ये होमवर्क क्या रहेगा? क्योंकि अयूब का एक नॉमेनक्लेचर किया है, तुम्हारा बुक से देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है कोई एग्जांपल्स में, तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. खाने के जाना है तो उनका खाना में दे देता हूँ। हाँ एड्रेस तो यही दिया है। 1 मिनट में तो मैं कॉल करके बात करूँ।